Hare Krishna. Hare Krishna. We just came back about 2 weeks ago from traveling with Guru Maharaj in North America, US, Canada, and Moscow. तो श्री महाराज के साथ नॉर्थ अमेरिका, मॉस्को, कनाडा की यात्रा पूरी करके वापस आए हैं महाराज. Very, very hectic program. He told me that this must be the most hectic, most demanding preaching program that we did. और ये बहुत ही ज्यादा व्यस्त प्रोग्राम था. अब तक जितने भी प्रोग्राम हुए उनमें सबसे अधिक व्यस्त प्रोग्राम था. कृपया शांति बना के रखिए प्लीज. शांति बना के रखिए. सब बैठ जाइए प्लीज. बीच में खड़े ना हो. शौकलाई बॉशोन. एवरीवन सिट डाउन. तुसी बैठ जाओ. बैठ जाइए. प्लीज जो बीच में है बैठ जाइए प्लीज. Otherwise, everybody will be just like this. There is no shanti. Just wait till this finished, then they go. ये जो पंक्ति है हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज पीछे से पंक्ति बनाना शुरू करें. At the back, not आगे से ना over here. पीछे से जाइए प्लीज. It's full. Crowd control. My dear Guru Maharaj, मेरे प्रिय गुरुदेव, please accept my most humble obeisances unto your lotus feet. आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें. All glories to Srila Prabhupada and unto you on this most auspicious day of your Vyasa Puja. आपके व्यास पूजा के शुभ अवसर पे मैं श्रील प्रभुपाद और श्री गौरंग महाप्रभु को दंड प्रणाम करता हूँ. I would like to offer my koti gratitude unto you, your divine grace, for saving this fallen soul from the quagmire of material existence. भौतिक जगत के कश्मश से आप जीवात्मा को उद्धार कर रहे हैं अपनी कृपा के द्वारा. इसके लिए मैं कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आपके चरणों में. Having been here in the material world since time immemorial, जो कि संसार के अंदर अनादिकाल से दुख पा रहे हैं. along with countless souls who have taken shelter of you, I bowed unto you again and again. और इस प्रकार से कई असंख्य जीवात्माएं जिन्होंने आपके चरणों की शरण ली है और वो आपके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं. Your glorious qualities of being a bona fide spiritual master further enhances our disciplic succession without any limit. हमारी जो गुरु परंपरा है उनकी महिमा को आप कई गुना आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप एक प्रामाणिक गुरु के रूप में सेवा करते हैं. As an acharya, you exemplify the nature of how to please the predecessor acharyas to the best of your ability. आप एक आचार्य के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रकार से जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उनका अनुगमन कैसे किया जाए अपनी भरसक प्रयासों के द्वारा. You have sacrificed everything for the pleasure of Sri Guru and Gauranga. आपने गुरु और गौरांग के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया है. You always emphasize on the nature of this temporary world to us. आपने इस जगत के अनित्य होने के भाव को बार बार प्रस्तुत किया है. And the urgency to be released from the cycle of repeated birth and death. और कितनी इस बात की आवश्यकता है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है. By following the process of bhakti yoga sincerely for our well-being. और भक्ति योग का बहुत ही गंभीरता पूर्वक अनुगमन किया जाए हमारी भलाई के लिए. You always remind us that life is short and there is no time to waste. तो आप हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और हमें हमारा समय बर्बाद करने का कोई आशंका नहीं है. So to take up the matter in earnestness and follow your instructions as our life and soul. और इस बात को हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक लें और आपके आदेशों को अपनी आत्मा में समाहित करें. We are fortunate to have you as our spiritual master, father, friend, guide and mentor. हम देखते हैं कि आप विविध रूपों में हमारी मदद करते हैं. गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में. We are definitely protected under your able care as long as we do not deviate from the regulative principles and our agreement at the time of initiation to chant the prescribed number of rounds of the Mahamantra without any offenses. और आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं इस रूप में कि हमको महामंत्र बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना चाहिए बिना भटकाव के द्वारा और साथ ही हमें अपराधों से भी बचना चाहिए. You are always happy to see us make spiritual advancement and you want to be sure that at every moment we keep on trying harder to reach the goal of this human form of life
which is love of Shri Radha Krishna. आप बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब आप अपने शिष्यों को भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन का लक्ष्य, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो है राधा कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करना। इसको देख के आप बहुत प्रसन्न होते हैं। The qualification of a bona fide disciple are described in the Srimad Bhagavatam 11 Canto Chapter 10 Text 6 as follows. तो एक प्रामाणिक शिष्य की क्या योग्यता होती है, श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 10वें अध्याय के 6 श्लोक में बताई गई है। Amanya matsaro daksho nirmano dridha shoridhra asatparo rita jignasur anusayor amoghavak. The disciple must have the following qualifications. एक शिष्य के अंदर निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। He must give up interest in the material bodily conception of life. उसको जो शरीर से संबंधित जो संबंध इत्यादि कार्यकलाप हैं उनसे अपना को विरक्त करना चाहिए। He must give up material lust, anger, greed, illusion, madness and envy. और हमारे षड्वपु हैं उनसे दूर रहना चाहिए, जिनमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ये सम्मिलित हैं। He should be interested only in understanding the science of God. उसकी सिर्फ भगवान को समझने में, उनके विज्ञान को समझने में ही रुचि होनी चाहिए। And he should be ready to consider all points in this matter. और उसको इस कार्य में बहुत ही संजीदा रहना चाहिए। He should no longer think I am this body उसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं शरीर हूँ or this thing belongs to me. या ये चीज मेरी है। One must love the spiritual master with unflinching faith. गुरु की बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए And one must be very steady and fixed. और बहुत ही ज्यादा दृढ़ता पूर्वक भक्ति के कार्य करने चाहिए। The bona fide disciple should be inquisitive to understand transcendental subject matters. शिष्य को चाहिए कि वो दिव्य विषयों के बारे में प्रश्न भी पूछे। He must not search out for faults among good qualities. और उसको जो दोष है उनको किनारे करना चाहिए और गुणों पे ही दृष्टि रखनी चाहिए। And he should no longer be interested in material topics. सांसारिक विषयों में उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। His only interest should be Krishna, उसका सिर्फ एक ही रुचि होनी चाहिए, वो है कृष्ण, the Supreme Personality of Godhead. जो परम भगवान है। As far as the mutual testing of the spiritual master and disciple is concerned, जहाँ तक कि गुरु और शिष्य की आपस में परख की बात है, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that a bona fide disciple must be very inquisitive to understand transcendental subject matters. तो शिष्य को चाहिए कि दिव्य विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जिज्ञासा करे, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। As is stated in Srimad Bhagavatam, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी इस बात की पुष्टि हुई है। Tasmad Gurum Prapadyeta Jignashu Shreya Uttamam. One who is inquisitive to understand the highest goal and benefit of life must approach a bona fide spiritual master and surrender unto him. हमें चाहिए कि हम परम भगवान के प्रति अनुगत हो जाएं, किस प्रकार से उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के प्रति अपनी शरणागति को व्यक्त करके। A serious disciple must be alert when selecting a bona fide spiritual master. Just let me announce for them. हरे कृष्णा, जितने डिवोटीज यहाँ पर हैं प्लीज लाइन बनाइए, शोर मत मचाइए। यहाँ पर आप महाराज के बारे में सुनेंगे तो आपकी महाराज में श्रद्धा निष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी। और हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही करने के लिए आए हैं कि आज हम गुरुदेव की कथा सुनने के लिए आए हैं। सो प्लीज यहाँ जितने भी भक्त हैं फूल लेके खड़े हैं, फूल ना बन जाएं, आपस में बातें ना करें, चुपचाप खड़े हों। अगर कोई बातें करता नजर आएगा, हमारे वॉलंटियर जाएंगे, उससे उसका फूल छीन लेंगे और महाराज के आगे वो खाली हाथ पहुंचेगा और बहुत शर्मिंदा होगा। और महाराज से पूछेंगे फूल कहाँ है, तो बताएगा मैं बातें कर रहा था महाराज, मेरा फूल छीन लिया गया। तो यहाँ जितने भी भक्त हैं बातें कर रहे हैं, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है उनके गुलदस्ते छीन लें। उनको दुख होगा कोई बात नहीं, पर उनको बातें करना रोकना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर शोर मचाएं यहाँ पर कोई, उनके गुलदस्ते छीन लीजिए और उसके बाद बातें करें। 25,000 रुपए डोनेशन लीजिए टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए। The spiritual master should study the disciples' inquisitiveness for no less than 6 months or a year. तो 1 साल तक चाहिए कि शिष्य गुरु के पास उनका सानिध्य ले, उनसे प्रश्न पूछे और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को पूर्ण करे।
These are all from the Srimad Bhagavatam. ये सब 11 श्रीमद् canto. भागवतम से है, 11वें स्कंद से। A spiritual master should not be very anxious to accept a disciple because of his material opulences. तो भौतिक ऐश्वर्य है उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि चाहिए कि गुरुदेव के गुणों के शरणागत होकर के शिष्य को गुरु की शरण लेनी चाहिए। Sometimes a big businessman or landlord may approach a spiritual master for initiation. हो सकता है कोई बड़ा जमींदार या पैसे वाला व्यक्ति गुरु के पास आए उनसे दीक्षा लेने के लिए। Those who are materially interested are called Visayis, Karmis, which indicates that they are very fond of sense gratification. कुछ लोग बहुत ही भौतिक रूप से उन्मुख होते हैं और वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। Such Visayis sometimes approach a famous guru and ask to become a disciple just as a matter of fashion. कुछ विषयी लोग भी ऐसे विख्यात गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं फैशन के तौर पर। Sometimes Visayis pose as disciples of a reputed spiritual master just to cover their activities and advertise themselves as advanced in spiritual knowledge. तो कुछ लोग अपने दुष्कार्यों को छुपाने के लिए और अपनी विज्ञापन को बढ़ाने के लिए कि देखो मैं कितना विशेष हूँ, मेरे गुरु कितने विख्यात हैं, इस बात का ढिंढोरा पीटने के लिए वो गुरु के शिष्य बनते हैं। In other words, they want to attain material success. ऐसे लोग भौतिक सफलता चाहते हैं A spiritual master must be very careful in this regard. और गुरु को चाहिए कि इस बारे में बहुत ही सजग रहे। Such business is going on all over the world. और यही धंधाबाजी चल रही है पूरे विश्व भर में। The spiritual master does not accept a materially opulent disciple just to advertise the fact that he is such a big disciple. और गुरु भी ऐसे लोगों को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वो ढिंडोरा पीट सके, देखो मेरा कितना बड़ा पैसे वाला शिष्य है। He knows that my materially हरे कृष्णा डिवोटीज जो भी यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है जब हम किसी के फूलों को छीन लेते हैं, गुलदस्ते को छीन लेते हैं, लेकिन हमें करना पड़ेगा अगर आप लोग बातें करेंगे तो। यहाँ जितने भी लोग हैं बातें कर रहे हैं, इनकी फोटोएं खींचें और पंजाब केसरी भेजें, ये शोर मचाने वाले शिष्य हैं। सो प्लीज जितने भी यहाँ लोग हैं, यहाँ पर जितने भी भक्त खड़े हैं, प्लीज यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट भी चल रही है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं श्री महाराज के डिसाइपल्स कितने ज्यादा एटिकेट्स फॉलो करते हैं। सो प्लीज 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 यहाँ जो डिवोटीज हैं देख रहे हैं, हम धैर्य नहीं दिखा रहे हैं। जितने डिवोटीज है प्लीज शांत रहिए। महाराज यहाँ गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्लीज उसको सुनिए। पीछे वाले जितने भी हैं ऑफरिंग्स देने वाले, वो बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, टाइम लगेगा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं 3 तक गिन रहा हूं, प्लीज बैठ जाइए। अगर आप बैठे नहीं नजर आते हैं तो हम आपके गुलदस्ते ले लेंगे। हरे कृष्णा 1, हरे कृष्णा 2, हरे कृष्णा 2.5, पौने 3। बैठ जाइए प्लीज पीछे के भक्त। यहां भी भक्तों चाहिए, शोर ना मचाएं प्लीज। हरे कृष्णा फ्लावर ऑफरिंग हम रोक रहे हैं अभी, प्लीज। हरे कृष्णा डिवोटीज, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ डिवोटीज के चरण पकड़ लें, जो बातें करता नजर आए उसके चरण धो लें कि वो महान आदमी है जो बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं, शिष्टाचार नहीं मान रहे। प्लीज 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 डिवोटीज, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके, प्लीज फॉलो डिसिप्लिन। आपका शोर इतना आ रहा है जिसकी वजह से महाराज ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे। प्लीज फॉलो डिसिप्लिन। Hare Krishna. Haribol, we are being disrespectful to Guru Maharaj by having this chaos here. हम लोग यहाँ गुरु महाराज के प्रति अनादर व्यक्त कर रहे हैं शोर मचा करके। Little shanti, especially on this area here. ये जो एरिया है यहाँ शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है। प्लीज पहले शांति आएगी फिर भक्ति आएगी। प्लीज शांति। Okay, we'll continue. Yes. 2 more minutes.
If a so-called spiritual master accepts a disciple for his personal benefit or for material gain, the relationship between the spiritual master and the disciple turns into a material affair. And the spiritual master becomes like a smarta guru. और यदि ऐसा गुरु अगर दिखावे के लिए शिष्य को स्वीकार करता है तो शिष्य और गुरु का संबंध भौतिक हो जाएगा और ऐसे में जो गुरु है वो स्मार्त गुरु बन के रह जाएगा। There are many Kas Goswamis who professionally create some disciples who do not care for them or their instructions. कई ऐसे जो कास गोस्वामी होते हैं यानी कि परिवार में आने वाले गोस्वामी हैं, ऐसे लोग नकली शिष्यों को स्वीकार करते हैं और समाज में उत्पात मचाते हैं। Such spiritual masters are satisfied simply to get some material benefit from their disciples. और इस प्रकार एक गुरु कुछ भौतिक लाभ अर्जित करके बस संतुष्ट हो जाते हैं अपने शिष्यों के द्वारा। Such a relationship is condemned by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who calls such spiritual masters and disciples a society of cheaters and cheated. और ऐसे गुरु शिष्य समाज को श्री भक्ति साहब महाराज ने धोखा देने वाले और धोखा खाने वालों का समाज कह करके उनकी निंदा की है। They are also called Baulas or Prakrita Sahajas. इनको बाउल और प्राकृतिक शहदिया भी कहते हैं। Their aim is to make the connection between the spiritual master and the disciple into a very cheap thing. ये गुरु और शिष्य के संबंध को बड़ा सस्ता बना देते हैं। They are not serious in wanting to understand spiritual life. और ये आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाते हैं। Guru Maharaj, Guru Maharaj, you are empowered by the Supreme Lord and the Parampara to disseminate the glories of the Lord's name, fame, form, qualities and pastimes all over the world. तो जो गुरु होते हैं उनमें शक्ति का आवेश होता है कि वो परम भगवान का परंपरा अनुसार पूरे विश्व भर में नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करते हैं। You inspire everyone whom you meet and you make them seriously take up the process of spiritual life as their priority. और किस प्रकार से वो आप सबको प्रेरणा देते हैं कि सभी लोग बड़ी गंभीरता पूर्वक भक्ति को आगे रख करके अपने जीवन जिएं। May we be able to follow in your footsteps and please grant us eternal shelter unto your lotus feet. आपके चरणों का हमें शरण दे दीजिए हे श्री गुरुदेव, और ताकि हम आपके पद चिन्हों पर चल सकें। May we imbibe from you the same manner by which you please Srila Prabhupada and the disciplic succession. जिस तरह से आप श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा की सेवा कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकें, हम पे कृपा करें। On this most auspicious day, may you please shower your unfathomable mercy on all of us, and may you live many more years to come to be the beacon for countless souls on their way back home, back to Godhead. हम आज इस पवित्र दिन के दिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम सब पर इसी प्रकार से बरसती रहे और आप हमारे जीवन को और अनंत कई जीवात्माओं के जीवन को प्रकाशित करते रहें अपने आदेशों के द्वारा। Thank you once again, Hare Krishna, your aspiring disciple. Hare Krishna. धन्यवाद।